So, students, again welcome in the sixth part of this chapter 1, chemical reactions and equations on the same YouTube channel Edu Learn Science, edu.learn science. Me Ajay Singh with you. In part 5 video, you have came to know what are the displacement reactions and the reactivity series of the some metals. You have studied two examples. In this video, you will know about some more examples from displacement reactions. So let's see at the board. To save the time, I have already written some examples here. The pattern is same. The more reactive element displaces the less reactive element. Now see in these 6 examples. Zinc is more reactive than hydrogen. Zinc is more reactive than copper. You see the reactivity series of element. Copper is more reactive than silver. Zinc is more reactive, more reactive than silver. Magnesium is more reactive than copper. Lead is more reactive than copper. So all of these elements will displaces these elements or metals from their compound or solution. लेट्स सी आप अब आराम से इसको कर सकते हैं. क्या क्या इनमें बनने वाला है आप समझ पाएंगे. प्रोडक्ट्स जिंक क्लोराइड ZnCl2 एक्वस जिंक क्लोराइड प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस. क्लियर. नेक्स्ट जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस प्लस क्या बनेगा कॉपर हट जाएगा सॉल्ट. इन दिस रिएक्शन कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 it will form copper nitrate CuNO3 whole twice copper nitrate. What is this? Copper nitrate, and the color of this solution is blue. And what forms 2Ag silver solid form में. नेक्स्ट जिंक विथ सिल्वर नाइट्रेट आप जान रहे हैं. जिंक नाइट्रेट NO3 2 aqueous and displaces silver from its solution. It is the solid. It is the zinc nitrate, green in color. Again magnesium with copper sulfate solution. What would be? Magnesium sulfate MgSO4, and it is colorless and plus second product is what? Copper. Cu कॉपर को डिस्प्लेस किया. एंड द सिक्स्थ इज लेड विद कॉपर 2 क्लोराइड. क्या होगा? लेड डिस्प्लेस करेगा कॉपर को. इट विल फॉर्म PbCl2 लेड 2 क्लोराइड and it is colorless. This is the lead. And what would be the second product? Copper solid. So all of these equations you can easily observe that more reactive elements displaces the less reactive element from its compound and form the products. And in this way that second product is the second metal which is displaced by the more reactive metals. Take the screenshot. इसको आप पढ़ ही चुके हैं. जिंक सल्फेट और इट इज वाइट. जिंक क्लोराइड इज वाइट इन कलर. So these are some more examples of displacement reactions. I think now it would be quite clear to you what are the displacement reactions. Now we move on
uses or the application of the displacement reaction. Let's see applications. कहाँ पर ये अप्लाई होता है हमारी लाइफ में? Actually in your chapter 4 metals and non metals, sorry chapter 3 metals और non metals में आप metals you will study the extraction of metal from its ore. मतलब जिस लंप ऑफ मास से, जिस चीज से मेटल को एक्सट्रैक्ट बाहर प्योर फॉर्म में निकाला जाता है, दैट इज नोन एज, दिस प्रोसेस नोन एज द एक्सट्रैक्शन. तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, लार्जली एक्सट्रैक्शन निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर, इसके ओर्स में से. ठीक है, इसके ओर्स में से सिल्वर और गोल्ड को इसके ओर्स में से निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यूज करते हैं. ठीक है, होता क्या है कि इनका हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें मोर रिएक्टिव होता है बेटा. लेट्स सी केयरफुली. इसमें हम क्या करते हैं? सेम जिंक ग्रेन्यूल्स मिलाते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स. और हमें पता है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड गोल्ड. सिल्वर और गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक. सो वो इनके सॉल्यूशन में से, सिल्वर और गोल्ड के सॉल्यूशन में से हमें क्या करता है? सिल्वर और गोल्ड को बाहर निकाल देता है. एक्सट्रैक्शन हमें प्योर फॉर्म में सिल्वर और गोल्ड मिल जाता है. सो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एप्लीकेशन है वो एक्सट्रैक्शन की फील्ड में ज़्यादा है, और भी है, बट बेसिकली जो ज़्यादा यूजेज है वो है एक्सट्रैक्शन करने में. किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसके सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन में से उसको निकालने के लिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं, और इस तरह से हम उसको अलग निकाल लेते हैं. नाउ सेकंड इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेचर, अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नेचर की बात करें तो ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, ध्यान से देखिए और सुनिए, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर. अब ये क्या चीज है? एक्सो बेटा, देयर आर टू वर्ड्स, एंडो एंड एक्सो. एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर निकलना, एंडो मीन्स एंट्री होना, अंदर होना. जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो सभी क्या है? एक्सोथर्मिक नेचर के हैं. एग्जिट द थर्मल, थर्मी मीन्स क्या होता है बेटा? हीट. तो जितने भी रिएक्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनमें बहुत बड़े अमाउंट में हीट रिलीज होती है. सो ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक्चुअली इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़े बेसिकली 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस. कॉम्बिनेशन, सेकंड इज decomposition, third one is displacement, and fourth one we will study the double displacement reaction. इन सभी रिएक्शन में कुछ सब टाइप भी हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और द रिडॉक्स रिएक्शन. बट बेसिकली तो 4 टाइप हैं. वन बाय वन हम इन सभी को पढ़ेंगे. इन्हीं रिएक्शंस के अंदर ही जो और टाइप बताए हैं ये सब शामिल हैं.
सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किस तरह के होते हैं? ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। इनसे बहुत बड़े अमाउंट में हीट रिलीज होती है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। इफ समवन आस्क और इन योर पेपर द क्वेश्चन कम गिव द एग्जांपल्स ऑफ give the example of exothermic reaction, so you can easily write the example any of the displacement reaction. क्लियर है? इस एक्सोथर्मिक नेचर का एप्लीकेशन, इसका यूज मैं बताने जा रहा हूं। एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ले लिया बेटा? यस। सो एक्सोथर्मिक नेचर दिखाने के लिए, लिखने के लिए आप कोई सा भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यू कैन राइट इजिली, बिकॉज ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, बट स्पेशली the example is thermite reaction. Thermite reaction कई बार पूछा जाता है, what is thermite reaction? Write the equation, balanced chemical equation. So बेटा ये इसका एप्लीकेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एप्लीकेशन है, यूज है। क्या होता है कि जब हम एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम सॉलिड, एक्चुअली इट इज टेकन इज पाउडर फॉर्म, and it is reacted with Fe2O3 iron third oxide. It is known as the iron third oxide, or it is known as the ferric oxide. क्लियर है? इन दोनों को आपस में इनको रिएक्शन कराते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज स्ट्रांगली हीटेड, इनको हीट करते हैं। सो आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड Al2O3 एल्यूमिनियम oxide, or it is also known as the alumina. It is the main ore of, अभी मैंने बात की थी, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम को इससे बाहर निकाला जाता है, एल्यूमिना से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्यूमिनियम। एंड जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड प्रोडक्ट इज वी गेट 2Fe आयरन, बट इट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन पिघली हुई अवस्था में हमको मिलता है। This very reaction is known as the huge amount of heat. Also, कहाँ लिखूं? I think here should be the correct place. The huge amount of heat. बहुत बड़ी मात्रा में हीट भी रिलीज होती है। So this reaction is known as the thermite reaction. When aluminium is reacted with iron 2 oxide or ferric oxide, it forms the aluminium oxide or alumina with the iron is in molten state. अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ होता है। जब बात करते हैं कि इस रिएक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, हम यूज करते हैं गर्डर्स और मशीनरी parts are joined together. रेलवे ट्रैक्स हैं और गर्डर्स हैं। रेलवे ट्रैक्स या गर्डर्स हैं, गार्डर्स आप गार्डर्स बोल देते हैं इन लोकल लैंग्वेज। और जो बड़ी बड़ी मशीनरी के पार्ट्स हैं, आयरन के बने हुए या किसी एल्यूमिनियम के बने हुए, इनको जोड़ने के लिए हम
इस थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं, उनके जॉइंट्स के बीच में ये आयरन, जो पिघला हुआ जो आयरन है वो भर जाता है और ठंडा होने पे दोनों के दोनों जॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। सो दिस रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. व्हाट इज द थर्माइट रिएक्शन? Thermite reaction is also a type of displacement reaction. It is an example of displacement reaction. Displacement reaction and exothermic reaction. So in both of the case, in the example of displacement reaction or whether in the example of exothermic reaction, you can write this equation or the reaction. Aluminium is reacted with ferric oxide, it's from the alumina or the aluminium oxide with the molten state of iron and used in the joining of the girders, machinery parts or the railway tracks. This reaction is known as the thermite reaction. Is it clear? So this is the whole about the displacement reactions, in which you have studied a number of examples. This reaction is also known as the exothermic reaction, that is the release of heat release होती है इसमें से, सभी reactions में से जितने भी displacement reactions हैं. Especially the example is thermite reaction because it is used to join the machinery parts, railway tracks or girder. This reaction is known as the thermite reaction. This is the one first product is alumina. It is the main ore of aluminium, that is the aluminium metal is extracted, बाहर निकाला जाता है from the alumina. Is clear? So this is the whole about the displacement